I guess we are live on YouTube. Just a minute, let me check. I guess we are live on YouTube. Just a minute, let me check. Yeah, we are live. ठीक है. चल रहा है. All right. So let's wait for 3 to 4 minutes, Susan. Then we can start. Okay. I'm just waiting for others to join. I guess 13 people are here too, who are live with us. So yeah, we can start in 1 to 2 minutes. All right. Okay. Yeah, I guess we can start. Maybe others can join. There is a comment as well. Okay. Yeah. So people are here. We can start. All right. So thank you so much, Susan, for joining this podcast that we are going to start for data analyst people. And yeah, so this is organized by Mary Skill, and I'm Sony, CEO of Mary Skill. And we are doing this podcast with Susant Kumar, who is data analyst at Uber. And we are going to talk about his journey, कैसे इन्होंने तैयारी करी और अब तक इन्होंने पहले क्या क्या काम कर रखा है, कैसे प्रिपरेशन करी, पूरा रोड मैप ये हमारे साथ बताने वाले हैं. और उसके साथ ही में आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो सुशांत हम उन सारे सवालों पे भी आएंगे बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. ओके. और आई गेस मैंने वो लिस्ट आपको भेजी हुई थी, आपने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं, तो हम उन सारी चीज़ों पे आएंगे, उन सारे सवालों पे आएंगे और इन सारे आंसर्स सबको मिलेंगे जो उन्होंने लोगों ने पूछे थे कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, और ऊबर जैसी बड़ी कंपनी में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, व्हाट आर द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेटा एनालिस्ट पर्सन अगर उसको ऊबर जैसी कंपनी में काम करना है, राइट. और देयर इज अ गैप, मतलब एक बंदा जब प्रिपेयर करता है और फिर जब एक्चुअली काम करने जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, राइट. पढ़ाई पढ़ाई कुछ करे रहते हो और काम कुछ और करना होता है, तो फिर या तब समझ में आता है कि ये तो एकदम अलग हो गया, राइट. All right, so we'll come to Susant. Yeah, so thank you so much for joining. And all right, so maybe, yeah, so thank you so much for joining, and we can start. Over to you, Susant. Maybe like you can introduce yourself, like what is your, like how you started your journey, and what is your educational background, and like before Uber, where was you, what was you doing, and all those things. Yeah. Okay, so hi Abhishek, thanks for having me first of all, and it's a really good pleasure to be on a platform which are doing really good stuff for students and working professionals out there जो चाहते हैं इस domain में अपना space बनाना, because I've been to many of the platforms during my preparation, so I feel like that's a kind of a good initiative by you guys. Kudos to you. And as per myself, my name is Shushant, and I'm working in a data analyst right now, Uber as a data analyst. Prior to this, I've been working in Driffle, which is also a gaming marketplace, one of a kind in India. So वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा. और I started my journey. I'll just roadmap how where I started my journey from where I've done my graduation. So Just sorry to interrupt you. Maybe we can come to the roadmap, or you wo journey wala part we can pick later, right? In a more detailed way. So for yeah, now, just wanted to know from you, like I guess you joined Uber after Driffle, right? And I guess before yes, Driffle, you're working for DotPay as a business analyst, yes, right? yes, So, and you passed out from college in 2022. So I guess it's almost 1.5 years, or maybe almost 2 years, right? yeah. And in 2 years, you jumped from a business analyst role to a data analyst role, and at a company like Uber. So we'll talk about the entire journey in a more detailed way. But before that, I just want to, like, I just want to tell you guys also who are here and who are listening to us. So basically, most of the people asked us, like, how a person from a three-tier college or tier three college, right, from a very small college, not from IITs or maybe from a very good college in India, you came from a Gautam Buddha University, right? Yeah. And I guess it's a government college in UP, and it's a Yes. tier three college, right? And from a tier three college to a
to a company like Uber. So we are going to talk about this journey as well in a more detailed way. Before that, I want to know from you, like, how was your time in college? Like, what was your branch, and how was you with studies and your subjects? So yeah. Yeah, so I've done my graduation in electronics and communication, and it's had nothing to do with my current job. So that's what happens when you do engineering. You do any other stuff rather than engineering. That I does also. So if I talk about India, my college itself, it's not very much of a, can say the college that provides you a launch pad itself, because ना ही ज़्यादा अच्छी कंपनी आती थी, और वो पैकेजेस वही जो हर टीयर 3 में होते हैं कि 3 लाख का टीसीएस या Yeah. विप्रो में चले जाओ, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ गोल फॉर द एंटायर कॉलेज इटसेल्फ. सो वहाँ से और अब जहाँ पे है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो करिकुलम्स आई वुड से कि यार मुझे नहीं लगता कि कॉलेजेस का बहुत मेजर डिफरेंस करता है, बिकॉज दे हैव द 19-20 का फर्क है, सबका सेम करिकुलम होता है. इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे अपने आप को देखते हो, व्हाट कनेक्शंस डू यू हैव. व्हेन यू टॉक्ड अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर टू दिस lecture that connections plays a vital role in your career. Right. तो Right. वो बहुत मैटर करता है, और वही मैंने बनाए भी ओवर द जर्नी, चाहे वो डॉट पे में हो, चाहे वो ड्रिफल में हो. सो इट्स गुड टू हैव. बाकी या दैट्स ऑल अबाउट द जर्नी, बिकॉज So वहां से basically, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जीबीयू हेल्प मी अलॉट, बिकॉज दे जस्ट प्रोवाइडेड मी एजुकेशन. आई हैव टू फाइंड माई ओन वे आउट. दैट इज okay. समथिंग. Okay. All right. So your point is connections is everything, right? Like if you're from a tier three college, you need to build good connections with people who are in the industry, maybe working with good companies. We'll also talk about how you can build connections, right? When you are in college, how you can use LinkedIn, how you can build connections with people, how you can reach out to them, right? All those things we'll talk about as well. Yeah. So as you told us that you are from a electronics background, and I guess ज्यादा सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस वाले नहीं रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहे होंगे जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, राइट? बट फिर भी उन सारे सब्जेक्ट्स के बीच में आपने डेटा एनालिस्ट वाले रोल के लिए प्रिपेयर करा, एंड यू एंटर्ड इनटू अ जॉब प्रोफाइल व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू योर ब्रांच, राइट? जो आपने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग में. So yeah, well, now coming to this thing. So basically, when you was in college, like how much marks matter, right? Like जो college में बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लगता है कि उबर जैसी कंपनी में जाना है तो क्या मेरे को कॉलेज में अच्छे नंबर से स्कोर करना इंपॉर्टेंट है? क्या सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं? क्या ब्रांच मैटर करती है जिसमें मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, राइट? सो व्हाट्स योर टेक? सो यार मार्क्स तो मैटर आई वुड से कि करते भी है, नहीं भी करते, बिकॉज अब डिपेंड्स. अगर मार्क्स अच्छे हैं तो दैट मीन्स यू आर हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग इट. सो दैट्स गुड फॉर यू ओवरऑल, अगर बात करी जाए. बट हाँ, कंपनीज में जब आप इंटरव्यू देने बैठ रहे हो तो दे डोंट केयर अबाउट कि आपके बीटेक में कितने मार्क्स आए हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं. दे जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच इज रेलेवेंट टू देयर वर्क फील्ड. एंड इफ Okay. यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, दैट्स इट. फिर आप चाहे बिल्कुल नेक टू नेक पास होके आए हो, चाहे आप टॉपर हो, दे डजंट केयर अबाउट दैट. इफ यू एबल टू डू द वर्क, यू आर हायर्ड. दैट्स इट. Okay, okay. So एंड yeah, so basically your point is marks उतने मैटर नहीं करते, बट हाँ, तुम जिस फील्ड में हो, जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर if you can answer everything properly, right? So they डेफिनेटली. are not going to check your marks or your CGPA that you scored in your college, right? Or the branch or all those things they don't check, right? So यस. yeah, good point. Yeah, fair enough. Like so what do you think, like when a student who is in a college right now, maybe in third or fourth year, right? So what how he can prepare, right? Like if he's from a different branch, from electronics or electrical, so how you prepared yourself? क्या आपने सोच रखा था जब कॉलेज में गए थे कि मेरे को आगे चल के डेटा एनालिस्ट बनना है, और आपने वैसे प्रिपेयर करा, या फिर आपने फोर्थ ईयर में रियलाइज करा कि यार मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है, राइट? एंड हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड? या सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये काफी डाउट्स मेरे पास आते भी है कि यार मतलब वी आर इन अ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एंड वी वांट टू बी इन दिस फील्ड. So I always ask them a question that do you want to be in this field just because it's a hype of today, or do you really love to work with data? So that's you have to question yourself first of all. So मेरे case में I guess it's a combination of both, because I love the data. Because यार colleges में ना in GBUs there used to have a very different competitions regarding the guesstimate rounds. They have some kind of guesstimate questions. We have a data analytics
entire hackathon based on data itself. You have a data downloaded from different websites, and you have to present your analysis. So fourth year में वो start हुआ, and that is like something which excites me a lot कि हाँ यार ऐसा कुछ चीज which is you are giving input to a company that helps them to grow. So that excites me a lot. So business part होता है data का, that excites me a lot. So that makes my interest into this field. I started studying about it. I started as a business analyst in a dot pay. So वहाँ पे थोड़ी और understanding मिली कि how I can what are the tools specifically जो लोग पूछते हैं कि क्या tools cover करने चाहिए. So यार उस पे हम आएंगे obviously बाद में, but to be honestly that doesn't matter because हर company same tools use तो करती नहीं है. So you have to Right, upgrade right, yourself each job. right, सो right. ये क्वेश्चन की पावर बीआई कर लूं तो मैं क्या डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, तो आई वुड से यार बन तो तुम एक्सेल करके भी जाओगे, बिकॉज एट द Correct, एंड उन्हें मैटर करता है एनालिसिस करके दिखाना है, उन्हें correct. थोड़ा ना देखना डैशबोर्ड यार, उन्हें थोड़ा ना मतलब है कि तुम कितना अच्छा केपीआई बना के दिखा रहे हो, कितना अच्छा विजुअलाइजेशन बना रहे हो. दे वांट आउटपुट बाय ब्रो कि यार इतना पैसा लगाना है इस मार्केटिंग कैंपेन में, इससे हमें इतना रिजल्ट आना चाहिए, इसका तुम्हें पूरा रोड मैप बनाना है. तो ये उन्हें विजुअलाइजेशन से नहीं, ये तुम्हारी उनके कन्वर्सेशन से चाहिए होता है कि भाई हाँ इतना पैसा लगाएंगे तो इतना पैसा बनेगा, एंड दैट इज हाउ बिजनेस रन्स, नॉट ऑन विजुअलाइजेशंस, नॉट ऑन कोड्स. दैट आर पार्ट ऑफ द you can say a process that we do on a day-to-day basis, but yeah, that's it. So I would say. All right. Yeah. So good point. I guess मतलब टेक्नोलॉजी से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, राइट, एंड हाउ Exactly, यू कैन exactly. कम टू दी हाउ यू कैन आंसर, और क्या क्या आपके क्या इनसाइट्स है जो आप दे पा रहे हो यूजिंग डेटा. Technology doesn't matter that much if you are using Power BI, if you're using Excel, if you're using some other tool, right? So what Yes. matters is how much you can analyze data and what are your insights from the data and how it can help the company. Correct? Yes, yes, Yeah. yes. Because Yeah. I worked in a dot pay. It's a org of about 800 or 900 peoples, and for the analysis part, we are only using Excel sheets, and Mm-hmm. that's what we are doing. Google Sheets, basically Google Excel sheets. I would say that, but that is what we are doing. There is no Power BI, there is no Tableau, and there is no any hard code. SQL, though obviously you need if you have a larger databases, you need SQL for retrieval of the data. But at Okay. the इसके लिए आपको आना एक्सेल पे पड़ता है. All right. All right. और अब यहाँ पे Uber में there are tons of tools which are the internal tools built upon Tableau, built upon Looker, built upon Piper and what so not. Because अब इस लेवल पे अगर Uber के लेवल पे बात करें, there is a millions of data you can't handle on Excel sheet. So then you have to move Right. up, you have to skill up. Right. So Right. वो तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं Uber में आ गया तो I will have some everything that I know. मेरे को अभी भी काफी कुछ सीखना है, and I'm in a process. I would say everyone is in a process. They'll upgrade Yeah. themselves. Yeah. Yeah. That's Yeah. you have to have a mindset कि ये नहीं कि भाई पहले मैं पावर बीआई सीखूंगा तब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा. ब्रो ऐसा नहीं होता. You have to अप्लाई फॉर अ जॉब, वहां पे आपको 10 बातें पता चलती है कि यार Yeah. अच्छा ऐसे बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है उन्हें. पावर बीआई मैटर नहीं We'll करता. we'll come to this as well, how you started applying for jobs and how you prepared for jobs, right? Sure, But yeah, sure. after completing your college, you might have started looking for jobs. So how you got your first job? Like when you started after finishing your So college? I just mentioned that contact matters a lot, and that helps me a lot also. Referrals, I would say. But again, yeah, that is a kind of a luck, I would say. But मैंने कहा ना स्टार्टिंग में यार कि आपके रेफरेंस और आपके कॉन्टैक्ट्स आपकी बहुत मदद करते हैं, और थ्रू आउट द जर्नी करेंगे. ऐसा नहीं है कि पहले 2 साल में करेंगे. Correct. ये थ्रू आउट द जर्नी आपके काम आते हैं. आपके दोस्त हो गए, आपके सीनियर्स हो गए. आई वुड से सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स में रहोगे. इफ यू नो समवन ऑफ योर कॉलेज हु आर इन अ डेटा और बिजनेस एनालिस्ट फील्ड, सो इट्स नो शेम टू कॉन्टैक्ट देम, आस्क देयर गाइडेंस. एंड Right. आई हैव सीन यार बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे भी मिले हैं, not from my college, from other colleges also, जो help कर देते हैं. And that is what I believe कि if you help others, and that's the most beautiful work to do. And Yeah, yeah. And just want to add for you guys, I guess Susant is also a very good senior who can guide all these people who joined us today, right? And he can mentor you guys, he can help you how you can prepare for data analyst role, how you can look for jobs and all these opportunities. Yeah. Now coming to this, so as you told me that after finishing your college, you went to your connections and you asked them for referral and all these job opportunities, right? So that is how you got your first job of a business analyst role, right? yes, But
after working as a business analyst for I guess 6 to 7 months, right, at DotPay, how you decided you need to make a career shift from business analyst to data analyst, and then how you applied for this job at Griffel, and what you so yeah, like I just want to know from you about this particular journey from business So, analyst to data yeah, analyst. yeah, Yeah. that's a good question, I would say. So, while my work or while my duration at DotPay, I would just mention that there is no much involved of a tech tools, as I would say. There is no Power BI, there is no hardcore SQLs, I would say. So, हुआ क्या यही होता है at the end कि अब भूख तो बहुत ज्यादा है मगर मिल कुछ नहीं रहा है ना कि बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ करना है वो यार जब नया नया निकले कॉलेज से एंड आई वाज लाइक द गाइज हु आर जॉइन द दिस सेशन कि करना बहुत कुछ चाहते हैं बट पता नहीं क्या करना है तो वही स्टेज था सेम क्योंकि गाइडेंस जहां से मिल रही थी जैसे मिल रही थी अगर मुझे पता चलता था कि गूगल में ये टूल यूज करते हैं मैं वो सीखता था Hmm. मुझे पता चला उबर में ये टूल सीखते हैं तो मैं वो सीखने लग गया तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड तो वहां पे मैंने देखा कि यार थोड़ा सा तो मिसिंग है मतलब यहाँ पे रह के वो जो कोर डेटा का काम होता है वो तो नहीं हो पाएगा Hmm. सो Hmm. एंड देयर आई स्टार्टेड लर्निंग आई वुड से कि यार मैं तो ऑफिस टाइम्स में भी काफी टाइम निकाल के सिर्फ पढ़ाई करता था मतलब कि मुझे अगर Hmm. कुछ सीखना है अगर मुझे लेट्स सपोज मुझे डैशबोर्डिंग सीखनी है ढंग से या फिर मुझे एनालिसिस सीखना है रूट कॉज एनालिसिस कैसे करते हैं किसी बिजनेस का Hmm. I'll take a time spare out of my work and try to learn new things. And that's how I get a chance in a Driffle itself. And yeah, so upskill की बात है अगर आपको आगे बढ़ना है, so you have to learn. कोई Yeah. मैं तो नहीं मानता कि यार कोई ऐसा स्टेज आपकी जिंदगी में आएगा जहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने सब कुछ सीख लिया और अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. So you always have to upskill. Right. So yeah, so basically you need to keep learning and you need to keep upskilling yourself, right, within the technology or maybe within that particular domain जहाँ पे भी आप जो भी कर रहे हो, Exactly. right? Yeah. Now, before I jump to Uber and all those other things, I just want to know from you, like यहाँ तक का जो रास्ता था, यहाँ पे आपको क्या difficulties लगी? एक college का जो graduate होता है, maybe a student who is from a 3-tier college, right, and he might be learning number of things, right, and he Yes. don't know how to apply for jobs, he don't know how to reach out to people for to build connections or maybe for jobs and for guidance and all those things. So before I come to answer आपसे कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए, before that I want to know from you, आपने क्या क्या challenges face करे जब आप कॉलेज में थे या आप जब कॉलेज से निकले और उसके बाद जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा, तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट आर द चैलेंजेस, ताकि ये जो लोग हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको भी समझ में आए कि यू आर जस्ट लाइक देम, राइट, फ्रॉम अ tier 3 college and to Uber. Exactly. So yeah. सो या देखो उस पे तो मैं आऊंगा ऑब्वियसली विल स्टार्ट दैट आल्सो बट आई वुड टू से कि यार सिनेरियो है कि आज के डेट में कि रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू अ पोस्ट व्हेन आई वाज जस्ट सर्चिंग आउट फॉर अ न्यू जॉब एट सो देयर इज अ गाइडलाइन सेंडेड बाय बिट्स गोवा कि भाई उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है बिट्स पिलानी आई गेट्स दे आर सेइंग Okay. कि उनके स्टूडेंट्स की भी प्लेसमेंट नहीं हो पाई है सो Hmm. दैट गिव मी हिंट कि यार हम जैसे बंदे जो टियर 3 से आते हैं Hmm. हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जब बिट्स वाले बंदों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है आईआईटी वालों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो Right. रिज्यूमर यार देखो जो वहां बैठा हुआ है ना जॉब देने के लिए तुम्हें तो वो शॉर्टलिस्ट करता है एंड आई हैव सीन आउट ऑफ माय 100 जो अप्लाइड 90 ऑफ माय जॉब्स हैज बीन रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव दैट टैग सो Right. डिफिकल्ट तो है देखो अब मैं Right. झूठ तो नहीं बोलना चाहूंगा डिफिकल्ट तो है बट अगेन जो कुछ एक 10% चीज आपको अलग करती है that is again your contacts and your network in terms of how good you represent your skills. I've gone through many resumes people send me and even though they are doing very good stuff I would say कि यार IITs के बंदों से भी अच्छा काम कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो जब मैं देखता हूँ I would love them कि यार मतलब ये बंदा कैसे कॉलेज से आके और क्या क्या काम कर रहा है कैगल पे कॉम्पिटिशन्स खेल रहा है मस्त अपना उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है डैशबोर्ड्स बना रखे हैं स्ट्रीम कर रखे हैं सो वो सब चीजें मैटर करती है वही जो 10% आपको अलग करता है वो यही है कि यार सबके पास डिग्री तो बीटेक की सबके पास ही है बट आपके पास Right. अलग क्या है जो आपको जॉब दे देगी वो ये स्किल्स है वो सिमुलेशंस है कि हाँ भाई आप एंड टू एंड किसी प्रोजेक्ट को उठा के उसे पूरा कर रहे हो दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट द रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर Yeah. Correct. दैट इज व्हाट इट इज आई वुड से और टियर 3 कॉलेज का देखो थोड़ा ड्रॉबैक तो हमेशा रहता है ये सबको पता है ऐसा कोई छुपाने वाली बात होती नहीं है बट अगेन आई वुड से कि यार वो तुम्हें लिमिट नहीं कर पाएगा कभी बिकॉज जॉब्स है मार्केट में जो लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है यू आर नॉट लुकिंग इन अ राइट डायरेक्शन और यू आर नॉट लुकिंग इन अ राइट वे
Yeah. I've seen people looking random jobs, 3 3 साल का एक्सपीरियंस वाली जॉब पे अप्लाई कर देते हैं, फिर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता तो सेटबैक हो जाता है। अरे भाई मतलब look out the jobs relevant to you first of all, apply thoroughly, connect the Mm. recruiters, मतलब वो प्रोसेस है, विल डिस्कस अबाउट दैट एंटायर कि लिंक्डइन पे कैसे पूरा एक अपने आप को एज अ ब्रांड बना के बेच सकते हो। दैट Yeah. इज अ प्रोसेस इटसेल्फ, बट Yeah. हाँ मतलब आई वुड से कि यार लिमिट तो नहीं करना चाहिए टियर 3 कॉलेज में, बिकॉज मैंने भी, मेरा तो आई गेस किसी ने कॉलेज का नाम भी नहीं सुना होगा, बाकी टियर 3 कॉलेज तो और भी बहुत अच्छे हैं यार आई वुड से। मेरा Right. तो आई वुड से कि किसी ने नाम भी सुना होगा, या फिर हमारे यहाँ तो पैकेज भी 6 6 लाख मैक्सिमम जाते थे, तो हमारे लिए तो कोई ऐसा सेट गोल भी नहीं होता था। बट अगेन when you start working, when you start meeting peoples, you realize कि यार there is a space for talent, you just have to prove them. So work on yourself. That is the mantra I always believed on. Right. कि And I guess when you started this whole thing, right, and when you started applying for jobs, तो आपने मेरे को थोड़ी देर पहले ही बताया था जब हम क्या कहते हैं वेबिनार से पहले, इनफैक्ट आप ये बता रहे थे कि you applied for almost more than 100 jobs, right, and you got rejected from 50, I would 60 say jobs. 100 तो बहुत डाउन स्केल नंबर बताया मैंने, because I have applied for more than 300 easily. Because यार जब वो अप्लाई करने बैठते थे ना, तो someone suggested me that whenever you are looking for a job, make it your job looking a job. That is means you have to sit for 8 hours just on LinkedIn, reach people, apply for jobs. अगर कहीं से रिवर्ट बैक आ रहा है तो appropriate actions लेना, उन पे बंदों को reach out करना कि bro I just seen a job in your company, can you refer me out? So that's helped Right. me a lot, even though I would say कि a job in Uber is a referral to me. Yeah. There's a one Okay. person I connected with him and he referred me for the job. Interviews goes, obviously interviews तो होगा, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि रेफर कर दिया तो जॉब लग गई, बट वो जो एक इनिशियल बैरियर होता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, वो रेफर से हो जाता है ब्रो, मतलब दैट हेल्प्स Right. अ लॉट। तो Right. यही है, वो पूरा एक मंत्र है कि मेक इट अ जॉब, मतलब अगर आप खाली हो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो तो 8 घंटे आपको लिंक्डइन पे बैठना है, नौकरी पे बैठना है, make your profile more visible, start posting about the relevant stuff you are doing. अगर आप कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो, start posting about, अगर कुछ नया सीख रहे हो, start posting Mhm. about, reach out to Right. peoples. तो Right. ये सब होता है जो आपको थोड़ा सा एक्टिव बनाता है, एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज ये मैंने करा है, ये बेसिकली प्रूवन है, एल्गोरिदम है बेसिकली, यू कैन से कि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहते हो लिंक्डइन पे, उतने ज्यादा आप रिकमेंडेशंस में आते हो लोगों की। तो इफ समवन इज सर्चिंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड यू आर posting about the stuff related to data analyst and you are studying about that, so आप recommendations में होंगे रिक्रूटर के, और ये है फैक्ट है। Okay, yeah, makes sense. So your point is कि जॉब अगर ढूंढ रहे हो ना तो उसको भी एक जॉब ही बना लो कि वही तुम्हारा काम है पिछले 1 महीने के लिए, एग्जैक्टली, महीने के लिए, कि तुमको 8 घंटा बैठ करके you need to apply for jobs and that is your job only for next 1 month, right? When you're looking for a job, when you're searching for a job. Yeah, it's a very good point actually. And like normally people they don't look for jobs like this. What they do is कि ठीक है 10 मिनट निकाला, अप्लाई करा 4 जगह और फिर back to normal life, right? Maybe they started learning something or they're spending time on some other things, right? But they don't give this much of time to look for jobs or opportunities or to build connections during that job search wala process. Yeah, so I guess it's a very good point actually. And let's move ahead. So basically you told me कि अभी के लिए मतलब जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसमें अप्लाई करने वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा मेहनत करके करो ताकि बहुत टाइम दो उस चीज को, राइट? बट ऑब्वियसली एक यार, यस, या एक बार आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, सारी चीजें हो गई, बट यहाँ पे भी बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और फिर कुछ जगह से हमको ईमेल आता है कि ये टास्क कर लो या ऐसा कुछ कर लो, राइट? एंड देन यू वर्क ऑन दोस टास्क और फिर होता है कि यार आगे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लोग गिव अप भी करने लग जाते हैं कि यार मेरा तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा है या तो मेरा कुछ तो गड़बड़ है, राइट? सो कैन यू टॉक अबाउट दोस थिंग्स जहाँ पे कमी रहती है, या तो वो रेज्यूमे हो गया, या तो वो लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गई, या तो वो प्रोजेक्ट्स हो गए, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन की प्रोफाइल या रेज्यूमे या फिर प्रोजेक्ट, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो एचआर होते हैं, वो क्या देखते हैं एक अच्छे रेज्यूमे में, क्या देखते हैं एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या होना चाहिए, और अगर आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं अपने रेज्यूमे पे एक फ्रेशर के लिए, और अगर एक बंदा जिसने पहले काम कर रखा है उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो उन चीजों को उसको कैसे लिखना चाहिए ताकि उसके चांसेस बढ़ जाए सिलेक्ट होने के लिए? या सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, मतलब कि
क्या ढूंढ रहे होते हैं, यही तो सबको जानना है कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो यार देखो प्रोसेस समझाते हैं ना, होता क्या है कि जैसे अगर लेट्स सपोज कि आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ उबर एंड आई नीड टू हायर डेटा एनालिस्ट अंडर मी। मेरी टीम है, मुझे अपने अंडर डेटा एनालिस्ट हायर करने हैं। तो मैं रिक्रूटर को सिर्फ 3-4 बातें बताता हूँ जो मेरे को रिक्वायर्ड है कि आई नीड अ पर्सन हु इज गुड इन एसक्यूएल एंड हु कैन एबल टू मेक डैशबोर्ड्स इन लुकर। मैं रिक्रूटर को ये बताता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए सेमी, मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला चलेगा। तो ये कुछ की पॉइंटर्स मैं उसे देता हूँ। वही की पॉइंटर्स के बेस पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन एआई के थ्रू लिखवाते हैं कि आई नीड अ पर्सन विद 2-3 years of experience who needs to know Looker and have a good command in SQL Excel। सो यार वो जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो आपके लिए होली ग्रेल है, आई वुड से। आई मीन देयर इज एंटायर प्रोसेस जो आप बता रहे थे कि आप मेरी स्किल वाले भी करवाते हैं। दैट इज आई डोंट यू हैव लॉन्च दैट प्रोसेस, इट्स इन अंडर प्रोसेस की if there is a program where you just can extract job descriptions and make a resume based on that job description, and that's a very good stuff you are making about. So you are not audible, I think. You're on mute. Yeah, sorry. I'm saying that is something which is under pipeline and we are planning to launch it. So yeah, so अगर मतलब आई मीन दैट विल स्ट्रीमलाइन अ प्रोसेस बिकॉज जो मैंने कहा ना 8 घंटे लोग सोचते हैं 8 घंटे क्यों लगते हैं, 8 घंटे इसलिए लगते हैं बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू ईच जॉब डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे में एडिट्स करना, इट विल टेक फॉर एक जॉब अप्लाई करने के लिए आई वुड से हाफ एन आवर तो आसानी से लगता था बिकॉज गोइंग थ्रू ऑल द पॉइंटर्स एंड मेक अ रेलिवेंट पॉइंटर्स और फिर उसको अपने सीवी में ऐड करना एंड नॉट जस्ट एज ए स्किल ऐड करना कि माई सीक्वल था तो माई सीक्वल ऐड कर दिया। यू हैव टू शो दैट यू हैव वर्कड ऑन माई सीक्वल। सो आपको प्रोजेक्ट Right. बताने पड़ते हैं कि मैंने माई सीक्वल से रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट करे हैं, पावर बीआई पे रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं। सो दैट इज व्हाट टेक्स टाइम एंड तभी 8 घंटे लगते थे मुझे, और वही So प्रोसेस है। basically, yeah, now I guess आपने पिक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर कर दिया। अब तक मुझे लग रहा था कि 8 घंटे you just click and apply, but now I नो get it. Like you open your resume, then you look for the JD, and then you make changes to your resume, right? So if you have applied for almost 300 jobs, तो maybe हो सकता है आपके पास अपने 100 resume होंगे अलग अलग, जिसमें एग्जैक्टली, हर कहीं एक पे जॉब का अलग रिज्यूमे होता है, हर एक जॉब हर का अलग रिज्यूमे होता है हर क्योंकि एक जॉब का। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। किसी को लेट्स सपोज किसी जॉब में अगर पावर बीआई चाहिए, मैंने काम करा है, मैंने पावर बीआई पे काम करा है, टैब्ल्यू पे करा है, लुकर पे करा है, बट मेरा नीश जो था वो नहीं था पावर बीआई। आई जस्ट वर्कड ऑन माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स, बट अगर मुझे उन्हें दिखाना है कि आई वर्कड ऑन दैट, तो ब्रो मैं डालूंगा ना कि हाँ मैंने तो करा है, मैंने अपनी पिछली कंपनी Right. में भी डैशबोर्ड्स बनाए हैं। दे डोंट गिव अ फक कि आपने बनाया है नहीं बनाया, कोई पूछता नहीं है टू बी ऑनेस्टली। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने काम करा है एंड यू कैन डू इट, मेंशन इट। और उसको अपने एक्सपीरियंस में, इफ यू आर अ प्रोफेशनल जिसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपस्किल करना चाह रहा है तो वो डाल सकता है। अदरवाइज आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट गो टू मेरी स्किल, गो टू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। दे हैव अ वेरी वंडरफुल कोर्सेज जो आपको पूरा बताते हैं कि एंड टू एंड की बिजनेस रिक्वायरमेंट से लेके एक एंड टू एंड डैशबोर्ड कैसे डिलीवर करना है। दैट्स अ वेरी गुड Right. स्टफ बिकॉज यही हम Right. करते हैं एग्जैक्टली। Yeah. हमारे पास कुछ ये नहीं आता है कि ये केपीआई ऐड करना है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है कि वी वांट टू मेजर दिस मैट्रिक्स, फिर उस मैट्रिक्स को डिफाइन करना, उसके अराउंड केपीआईज प्रोड्यूस करना, फिर उस केपीआईज को डैशबोर्ड में डालना, ये पूरा प्रोसेस होता है। हमसे Right. कोई ये नहीं बोलता कि एओवी ऐड कर दो या जीएमबी ऐड कर दो, वो हमारा डिसीजन होता है बेस्ड ऑन द हाँ. मैट्रिक्स कि क्या इस केपीआईज को देख के उसको वो समझ आएगा कि जो वो जानना चाहता है। दैट इज अ प्रोसेस एंड दैट्स is something we also need to look out for, but apart from that हाँ मतलब जॉब हंट यही है यार, मतलब 8 घंटे इसलिए लगते थे और that will help you a lot because अब सबके पास, उनके पास एक जॉब के लिए यार 1000 रिज्यूमेज आ रहे हैं, उनके लिए शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाता है कि इस Right. बंदे को वही रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो हमें चाहिए। Right. तो फिर Right. आपका जो वो टियर 3 वाला टैग है वो इतना मेजर ड्रॉबैक नहीं होगा आपके लिए बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। सो दैट इज Right. व्हाट जो बंदे हैं जो टियर 3 कॉलेज से है, फिर और भी कुछ ऐसे कॉलेजेस से है जिनका नाम नहीं है या फिर दे आर नॉट हैव अ गुड लॉन्च पैड फॉर द स्टूडेंट्स। सो उनके लिए यही चीज है जो उन्हें अलग कर रही है। जो 10% का मैंने बताया था ना फर्क आता है कि वो 10% कौन है या वो टॉप 5% वो यही है जो भाई हर एक जॉब जेडी में जाते हैं, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे अपना रिज्यूमे बनाते हैं। आई मीन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। यू आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा ट्रेंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट्स है और इस हिसाब से आप अपने रिज्यूमे में इनपुट कर रहे हो। आई मीन से Right. दैट इज समथिंग। So basically आपके रिज्यूमे में ही आपकी डेटा एनालिस्ट वाली स्किल्स दिख जाती है, राइट? हाउ यू आर पुटिंग अप एग्जैक्टली। क्या कहते हैं
टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनीज का आपने कैसे डाला है, कितने अच्छे से डाला है, ताकि वो एक बंदा जो भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है उसको इजीली दिख रहा है कि दिस इज समथिंग व्हाट आई नीड फ्रॉम अ पर्सन आई एम एग्जैक्टली। गोइंग टू हायर, एंड सो दैट दैट पर्सन कैन इजीली शॉर्टलिस्ट यू, राइट? नाउ कमिंग टू, जस्ट वांट यू टू ऐड समथिंग हियर कि यार एक जो कॉलेज में फ्रेशर्स है, मतलब एक फ्रेशर जो बंदा है जिसने जस्ट कॉलेज पास आउट करा, राइट, उसके पास रिज्यूमे में डालने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, राइट? वो या तो अपने एकेडमिक्स डाल देता है कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने कॉलेज में, या तो वो बंदा डाल देता है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ड्यूरिंग द कॉलेज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीज इवेंट्स, राइट? द अदर थिंग कॉलेज पर्सन कैन पुट अप इज बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गया, नंबर्स हो गए, इसके अलावा और क्या डाला जा सकता है एक रेज्यूमे में ताकि एक फ्रेशर के लिए वो रेज्यूमे काफी अच्छा मतलब स्टैंड आउट करे और एक फ्रेशर इजीली सेलेक्ट हो सके? या सो फॉर दैट आई वुड से कि यार देखो, जो भी आप चीज डालोगे, आई मीन यू हैव, एज यू मेंशन, यू हैव योर पर्सनल प्रोजेक्ट दैट यू कैन पुट अपॉन, डेफिनेटली डू इट, बट ऑलवेज रिमेंबर वो पर्सनल प्रोजेक्ट जो आपने करा है, क्या आप उसमें कुछ डेल्टा ऐड करके लाए हो, या फिर आपने सेम वो यूट्यूब पे एक प्रोजेक्ट था, मैंने उसे कॉपी पेस्ट करा और अपने रिज्यूमे में डाल दिया, दैट वॉन्ट हेल्प यू, बिकॉज वो चीजें 100 लोगों ने और करी होगी। करेक्ट, करेक्ट, या उससे कुछ वेरी अलग गुड, करा आपने नहीं, या तो आप पे या क्रॉस हो जाते हो। फिर करेक्ट, दूसरा आता है इंटर्नशिप्स का, कि इफ पॉसिबल ट्राई टू गेट इंटर्नशिप्स पेड अनपेड इन सम कंपनीज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, 1-2 महीने की नहीं, मतलब इफ इट इज नेसेसरी करो, बट लॉन्गर ड्यूरेशंस की इंटर्नशिप्स मिल रही है तो आप कर सकते हो। दैट इज सेकंड थिंग, बिकॉज दैट आल्सो हेल्प्स यू अ लॉट। वो होता है ना, आप देखो व्हाट मेरी स्किल इज डूइंग, आई एम वेरी अम्यूज्ड बाय दैट, बिकॉज हर किसी को भी इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है, मैंने तो देखा है, मेरे को नहीं मिली थी। राइट, मैंने अप्लाई करा था बहुत जगह पे, उस टाइम पे भी बहुत कोशिश करी कि यार कुछ इंटर्नशिप्स मिल जाए अच्छी, बट नहीं मिली। सो वही चीज, अगर इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म दैट गोना रिप्लेस इंटायर दैट एक्सपीरियंस, कि जिसको एक्सपीरियंस चाहिए सबको मिलेगा, राइट, सो दैट्स प्रीटी गुड। और आप अगर वो अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू फ्यू ऑफ योर कोर्सेज एंड दैट्स समथिंग आई वुड से कि यार दैट इज नियर टू द मार्केट स्टैंडर्ड, आई वुड से कि यही कंपनीज में हो रहा होता है जो डाला है। yeah, and just want to tell you guys, like we have one data analyst program which is in partnership with Podha, and Podha is Sushant's company actually, and the entire program is developed by him only. तो वो जो प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म पे which is again which is live, but yeah the program is starting by Monday. सो या उस पूरे प्रोग्राम में सुशांत ने उस पूरे प्रोग्राम को ऐसे बनाया कि आप एक डेटा एनालिस्ट का रोल किसी भी कंपनी पे एक्सपीरियंस कर सको कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है एक डेटा एनालिस्ट बंदे की। या विल कम टू दिस एज वेल, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, बट या कमिंग टू दिस, सो योर पॉइंट इज कि अगर एक बंदा एक कॉलेज का फ्रेशर अपना रेज्यूमे बना रहा है तो उसमें प्रोजेक्ट्स को इंटरनेट से उठा करके बस रख ना दे कि भाई ये करा हुआ है, राइट? नहीं, वहां पे कुछ डेल्टा होना चाहिए कि सर अगर एग्जैक्टली, मैंने इस चीज पे काम करा है तो आई एडेड दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू दिस, ये नहीं थी एग्जैक्टली, पहले, मैंने अपने साइड से ये ऐड करा है, ये कुछ नया करा है यहाँ पे, या ये टेक्नोलॉजी यूज करी है, अब तक ये टेक्नोलॉजी किसी और ने यूज नहीं करी थी, आई हैव यूज्ड एग्जैक्टली, दिस पर्टिकुलर एग्जैक्टली, टूल या दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर बेटर और अपीलिंग, राइट, फॉर अ मैनेजर। एग्जैक्टली। और उससे होता क्या है ना अभिषेक, उससे होता ये है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारते हो ना, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है उन 100 लोगों से करेक्ट, जिन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, करेक्ट, बिकॉज करेक्ट, आपने करेक्ट, उसमें एफर्ट डाला है, आपने उसको पहले समझा है, फिर उसके अंदर इटरेशंस करी है, एंड या दैट व्हाट मेक्स यू अलग, कि भाई मेरे को थोड़ी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इसकी, करेक्ट, समझ करेक्ट, रहे हो? करेक्ट, सो करेक्ट, एंड इन दैट इज फैक्ट समथिंग। एट मेरी स्किल वी आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग, राइट? तुम्हारे पास स्टोरी होनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अराउंड या तुम्हारे एक्सपीरियंस के अराउंड, एग्जैक्टली, राइट? सो प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस के अराउंड लोगों के पास स्टोरी नहीं होती, वो बस बोलते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करा और ये प्रोजेक्ट का लिंक है और ये चीज है, राइट? बट व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज तुम्हारे पास होता नहीं है कि तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि सर आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर, इस ये चैलेंजेस आए मेरे को, फिर मैंने उनके आंसर्स ऐसे ढूंढे इंटरनेट से और इन चीजों को ऐसे सॉर्ट करा, राइट? तुम्हारे पास वो आंसर्स नहीं होते, और जब तुम ऐसे जाते हो किसी इंटरव्यू में तो उसको समझ में आ जाता है कि यार इट्स अ कॉपी पेस्टेड प्रोजेक्ट, तुमने I कॉपी mean, पेस्ट कर simple है लिया। ना, I've been through a conversation with a guy and he's asked in an interview, वो same effect यार, मतलब जूनियर था मेरा, जस्ट पास्ड आउट, कुछ कॉपी पेस्ट करके उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उससे इंटरव्यू ने सिंपल सा पूछा कि यू हैव डन दिस एनालिसिस, व्हाट आर योर मोटिवेशन, हम्म, आई मीन क्यों करा यही एनालिसिस, क्यों करा? राइट, बिकॉज राइट, उसने वो तो कॉपी पेस्ट करा है ना, और उस हो सकता है उस इंटरव्यूअर ने सेम प्रोजेक्ट 10 बार देख चुका अपनी जिंदगी में, तो उसे पता है भाई कॉपी पेस्ट करके लाया है। राइट, राइट, अगर वही तुम कुछ और अलग कर देते
तो वहीं उसे चमक जाता कि यार इसने एफर्ट डाला है, इसने उनसे करेक्ट, अलग कर रहा है कुछ, तो करेक्ट, इसके पास करेक्ट, बोलने के लिए कुछ होगा, समझ रहे हो? वही बस अलग, आप वहीं पे वो टॉप 5% में आ गए। करेक्ट, करेक्ट, सो करेक्ट, दैट व्हाट्स मेक्स यू डिफरेंट, आई वुड से। या वहीं पे आप स्टैंड आउट कर जाओगे बाकी भीड़ से अलग। राइट, राइट। नाउ या सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। नाउ कमिंग टू लाइक एक बंदा जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, अभी कॉलेज में ही है, ठीक है, और डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट ही कर रहा है कि यार आई हैव डिसाइडेड मेरे को अब डेटा एनालिस्ट बनना है और ऊबर जैसी कंपनी में बनना है या मे बी अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? नाउ एक जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, या फिर व्हाट कैन बी दी व्हाट एग्जैक्टली कैन बी द रोड मैप to be a data analyst at Uber maybe in next 3 months or 4 months, right? I guess बहुत सारे लोग जो अभी कॉलेज में हैं they are going to pass out in next 6 months, right? उनके कॉलेजेस खत्म होने वाले हैं। So let's suppose there is a person who is going to decide कि I want to be data analyst आगे, और मुझे 6 महीने में प्रिपेयर करना है अपने आप को, राइट, ताकि मैं बड़ी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर पाऊँ। तो what do you think, like how that person can start, what can be the roadmap, and is it achievable in next 6 months? अच्छा डेटा एनालिस्ट बना जा सकता है कि अगले 3 या 6 महीने में? या योर थॉट्स? Yeah, so I would say that's वेरी नाइस थिंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये एक माइंड मैप्स होते हैं और एक गाइडलाइंस होती है जो हमारे पास भी नहीं थी, बट with experience, with the talking with the seniors who have been in field for more than 10 years, so पता चलता है कि exactly क्या पाथ होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड बेस यार, देखो एनालिसिस फील्ड में ना 3 ब्रांचेस आ जाती है आपकी। डेटा एनालिसिस जो कोर रहती है, फिर आपके पास बिजनेस और प्रोडक्ट एनालिसिस आता है, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पीपल इसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करते हैं कि तीनों सेम है, प्रोडक्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट सेम है, बट वो नहीं है। तीनों का राइट, काम का डोमेन बहुत अलग है। स्पेशली बिजनेस और डेटा तो चलो क्लब हो जाते हैं, बट प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेटा। सो आई ओके, वुड से कि यार एक तो पहले आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो, एक्सप्लोर करो, टेक illustrations, टेक कोर्सेज, टेक सिमुलेशंस, व्हाटएवर यू कैन टेक टू जस्ट गेट एन आइडिया कि भाई प्रोडक्ट एनालिस्ट असली में क्या कर रहा है, डेटा एनालिस्ट असली में कर रहा है। बिकॉज होता है क्या, आई वुड से, बिकॉज व्हेन यू गो टू वर्क as a data analyst and you start working with a product, and let's suppose you found product more appealing, तो तब आपको रियलाइज होता है कि शिट यार, प्रोडक्ट में तो ज्यादा फन है, यहाँ पे ज्यादा कुछ इनपुट दे पा रहा हूँ मैं। तो सबका देखो माइंडसेट होता है, हो सकता है किसी का प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा हो, किसी का डेटा में ज्यादा अच्छा हो। सो पहला ग्राउंड नोट वही है, स्टार्ट विद योर प्रेफरेंस कि क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जब मूव फॉरवर्ड आप कर रहे हो, इवन दो एक्सपीरियंस हो, या फिर मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हु जस्ट about to graduate in a या, third year. So make your social presence very active. And when I talk राइट, about social presence, it's not about commenting on someone's other posts on LinkedIn, interested, very nice. That is not your social presence. My social presence means try to connect with the domain experts, the peoples who have been there in the field for the past years. ट्राई टू कनेक्ट विद देम। आप 100 लोगों को मैसेज भेजोगे कि हे ब्रो, आई वांट टू गेट नो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन अ कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट। आई एम वेरी श्योर पीपल आर वेरी हम्बल एंड दे कैन रिप्लाई टू बैक। अगर 100 में से आई वुड से 5% तो आपको रिप्लाई बैक करेंगे कि हाय, मैं ये काम करता हूँ इस कंपनी में, ये टूल्स यूज करता हूँ। तो आपके पास वहीं पे आपको पता है, आपको वो पूरी भीड़ में से जो यूट्यूब पे ज्ञान आता है कि ये कर लो वो कर लो, उनसे आपको एक्चुअल कोर पता चल गया कि भाई असली में क्या काम हो रहा है। करेक्ट, Try to connect with people on LinkedIn, make your social presence very active, that helps you a lot। जितने कॉन्टैक्ट्स है उतने आपके पास चांसेस ऑफ रेफरल्स बढ़ जाते हैं। बेसिकली सिंपल सा है, जब हम फनल बनाते हैं मार्केटिंग में, तो जितना बड़ा हमारा स्टार्टिंग फनल होता है उतने ज्यादा आउटपुट में इनपुट आता है ना। तो वो जो स्टार्टिंग में अगर आप फनल बड़ा बना लोगे कि जितना ज्यादा आपके कनेक्शन है, उतनी ज्यादा कंपनीज में है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ जॉब ओपनिंग इन दैट रेलेवेंट कंपनी, यू हैव अ कंसर्न पीपल टू रेफर, you can ask them to refer you। that is something। apart from that there are many platforms, I would also been on some of them like Kaggle हो गया। फिर आपके पास hackathons भी होते हैं आजकल तो डेटा में। there are platforms like SQL, Alchemy, data lemur, whatsoever there are, मतलब बहुत सारे हैं आज के डेट में। तो यार लीड कोड वगैरह है, प्रैक्टिस करो, मतलब that is what makes you also very different। प्रैक्टिस करो, बस ये कुछ चीजें हैं। मतलब आई वुड से यार, अब मैं भी इसमें ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज पीपल जनरली थिंक्स कि यार इसके पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये इतना कैसे बोल देता है यार। बिकॉज वो 2 साल आई वुड से कि मैंने बस सीखा ही है।
मैंने तो लोगों को ऐसे भी देखा है जो विप्रो में 4 साल से है एंड दे डोंट नो हाउ टू राइट अ नॉर्मल नेस्टेड क्वेरी। तो Yeah, मतलब कुछ yeah. वो इसलिए डेल्टा अलग है बिकॉज़ मैंने यार आई वर्कड इन अ ड्रिफल, इफ आई टॉक अबाउट ड्रिफल में मोस्टली बंदे आईआईटियंस थे। Hmm. द लीड एनालिस्ट वाज देयर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, शुभम Hmm. सर। अब आपने आईआईटी पढ़े तो नहीं, बट अगर आपने आईआईटियंस के साथ काम करा है, सो यू गेट देयर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ दे थिंक अबाउट द बिजनेस। सो Right, दैट इज right. समथिंग वो तभी आता है जब आप या तो उनसे कनेक्ट कर रहे हो। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उनके साथ काम कर रहा था, आपके पास नहीं है, सो दिस ट्राई टू कनेक्ट विद देम ऑन सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन एक सबसे आई गेस कॉमन यही प्लेटफॉर्म है। यहीं से इस चीज पे आता है कि जो आपने पहले भी बताया था मुझको कि मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट, एक बंदे के एग्जैक्टली। करियर में। कि एक बंदा है कोई जो उसको गाइड कर रहा है, हर स्टेप पे बता रहा है कि भाई ये इस स्टेप पे तुमको ये पढ़ना चाहिए, ये सीखना चाहिए, और साथ में मोटिवेट कर रहा है कि यार अगर मैंने 1 साल में ये कर लिया या 2 साल में मैं उबर पे हूँ, तो तुमको वही भी वही हो सकता है तुमको 1 ही साल लगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, राइट। मैं तो घूम फिर के एग्जैक्टली। पहुंचा उबर पे, पर अगर तुमको मैं बताऊंगा तो तुम 6 महीने में पहुंच सकते हो, राइट। एंड एज यू टोल्ड मी कि आपको भी मेंटर करा सीनियर ने आपके, और उन्होंने बहुत हेल्प करी आपकी। एंड what do you think, how much important this guidance is या mentorship कितना important है एक बंदे के लिए when he is in 4th year या फिर 3rd year में, या फिर पास आउट हुआ है कॉलेज से बट जॉब नहीं है, करियर पाथ नहीं पता है, तो कितना ज्यादा क्या रोल प्ले करता है मेंटरशिप या गाइडेंस वहां पे? यार बहुत मेजर रोल है, वो से वेरी क्रूशियल बिकॉज वो होता क्या है ना, जब आप नए नए पास आउट होते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्जन्स होते हैं कि आप यहाँ भी जाना चाहते हो, आप वहां भी हाथ मारना चाहते हो, बिकॉज कुछ क्लैरिटी तो होती नहीं है। यू जस्ट वांट टू डू समथिंग, अब आपको भी नहीं पता वो समथिंग क्या है। राइट। के लिए पैसा समथिंग है या आपके लिए काम या सेटिस्फैक्शन समथिंग है, वो आपको तब पता चलता है जब आप किसी सीनियर के साथ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर उस फील्ड में है इंटरेक्ट करते हो। बिकॉज काफी कंपनीज मेरे पास ऑफर्स आए विच हैव रिजेक्टेड। Let's suppose Decathlon is one of them. There is हम्म। three more companies which I have हम्म। received an offer during my job search, but वो मैंने मना करी, reason being because there is someone who had worked in that company और उसने मुझे हम्म। बताया कि ब्रो वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब है, ब्रो वहाँ का पे सर्कल बहुत खराब है, दे जनरली डिफॉल्ट इन देयर पे। तो मतलब ये सब आइडिया आपको लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास भी काफी क्वेश्चंस होते थे यार इनिशियली कि यार मैं डेटा साइंस में जाऊँ क्या, यार मैं हम्म। प्रोडक्ट कर सकता हूँ क्या। वो हम्म। सब ना, वही क्लियर वही डाउट्स होते हैं आपको, और जो सबको आएंगे अभी जो जॉब अभी ढूंढ रहा है या स्टार्ट करेगा कि यार डेटा एनालिस्ट तो बन गया, डेटा साइंटिस्ट भी बन जाते हैं ना यार, थोड़ा सा हम्म। एफर्ट मारना है, थोड़ा पे राइट, स्केल और डबल हो जाएगा बिल्कुल। तो राइट। ऐसा सोचना बुरा भी नहीं है, बट आई वुड से कि यार पहला ना try to focus to make your domain very strong. Data analysis is not a very small I would say life field of line. I've seen people जो 10 साल से डेटा एनालिसिस में है एंड दे नो मच मोर देन द डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज उनको डोमेन नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई है तो उनके लिए कोड मैटर नहीं करता राइट। लिटरली। हम्म। वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो सब बेटर होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यही चीजें है कि यार मतलब mentors helps you a lot in guiding you the right direction first of हम्म। all, in हम्म। guiding you which companies to follow upon कि भाई हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे जाना है, तो उनके पास दोस्त होते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं ना, तो वो सब बहुत हेल्प करते हैं। सो राइट, दैट्स राइट। लॉट। तो जो हमारा प्रोग्राम, इनफैक्ट मेरी स्किल का जो डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम आपने खुद बनाया हुआ है, तो मैं बस लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो पूरा प्रोग्राम है उसमें सुशांत एज अ मेंटर ही इज गोइंग टू जॉइन यू एवरी सैटरडे और संडे, जब भी उनको टाइम मिलेगा, और वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। एंड एट ईच एंड एवरी स्टेप ही इज गोइंग टू एड सम डेल्टा टू योर लाइफ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ डेटा एनालिटिक्स रोल, राइट। एग्जैक्टली। So, yeah, so guidance and mentorship plays a very important role, and we at मेरी skill, like we are going to help you with this thing particularly। एक जॉब प्रोफाइल को समझने के साथ उसका गाइडेंस, और एक कोई रहे अगर आपको गाइड और मेंटर करता रहे, दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू सो एज यू टोल्ड मी कि ये सारी चीजें तो जरूरी हो गई, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि जब आपने जॉब ढूंढना स्टार्ट करा, राइट, और अभी जो आप जॉब ढूंढ रहे थे उबर से पहले, जब आप अप्लाई कर रहे थे जॉब में रहते हुए बहुत सारी कंपनीज में, तो आपने क्या कैसे मतलब उसका प्रोसेस क्या था? पहले रेज्यूमे पे काम करा, कुछ चीजों पे काम करा, या पहले अलग स्किल सेट एक्वायर करा बिफोर रीचिंग आउट टू न्यू कंपनीज फॉर जॉब, राइट? एंड व्हेन यू स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कंपनीज, क्या आप एचआर को मैसेज कर रहे थे? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे जो आपने यूज करे, राइट? एंड मे बी कनेक्शंस कैसे बिल्ड करा, उनको कैसे बोला कि यार मेरा रेफरल लगा दो आप अपनी कंपनी में, राइट? हाउ यू कन्विंस पीपल फॉर योर
for any particular job role and for your profile. और क्योंकि एक बंदा जो नया है जिससे आप लिंक्डइन पे पहली बार कनेक्ट कर रहे हो, वो आप पे क्यों भरोसा करेगा कि यार यू आर द राइट फिट, और मैं अगर अपना रेफरल आपके लिए लगाता हूँ तो पहले तो अच्छा रेफरल लगा रहा हूँ, आप एक अच्छे बंदे हो, क्योंकि कल को कंपनी में आओगे तो यू विल ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट गाय, राइट, कि यार उस बंदे के थ्रू ये बंदा आया है. तो हाउ यू कैन बिल्ड दैट ट्रस्ट विद समवन whom you are reaching out maybe for the very first time on LinkedIn for a referral opportunity. So yeah. Exactly. So यार देखो इसके भी दो वेज है, द हार्ड वे एंड द वेरी इजी वे. इजी वे तो सिंपल सा है कि इफ यू हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद योर सीनियर्स, तो आई वुडंट से कि आपको ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज लेट्स सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ सीनियर्स ऑफ एंटायर 30-40 सीनियर्स यू नोन बाय पर्सनली फ्रॉम योर कॉलेज, तो 30-40 में से तो आई वुड से एक दो तो आपको रेफर कर देंगे अच्छे से, एंड दैट विल गिव यू अ बूस्ट. तो आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ा, इजी वर्क. बट दैट वोंट बी द केस फॉर ऑल ऑफ देम. सो उनके लिए एक हार्ड वर्क है जो मैंने भी करा, बिकॉज मेरा सीनियर सर्कल स्ट्रांग तो था, बट मेरे को क्या था कि जिस डोमेन में या जिस कंपनीज के लिए ढूंढना था उस कंपनीज में मेरे रेफर नहीं हो पाता. देयर इज नो वन सीनियर वर्किंग इन उबर फॉर माय नॉलेज और माय कंसर्न. तो उसके लिए हार्ड वर्क वही है कि पहला तो मेक हंटिंग अ जॉब एज योर ड्यूटी, वर्क फॉर 8 आवर्स, प्लान इट कि आज मैं सेट ऑफ कंपनीज में, और हाँ डोमेन स्पेसिफाई कर लो. लेट्स सपोज कि मैं क्या करता था, आप स्पेसिफाइड डोमेन कि आज मैं सिर्फ फिनटेक कंपनी में अप्लाई करूंगा. आई लुक आउट फॉर फिनटेक कंपनी, मेक अ लिस्ट ऑफ 10-15 कंपनीज. लेट्स से क्रेड हो गई, फिनहार्ट हो गई, फिरियो हो गई, बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी है फिनटेक डोमेन में अच्छा कर रही है. I'll go to their platforms, look out for the people specifically in the data and product domain, make a list of 50 people, request them. मतलब मैंने उस हद तक रिक्वेस्ट भेजी है कि लिंक्डइन ने मेरी रिक्वेस्ट भेजना बंद कर दिया. एक लिमिट लगा देता लिंक्डइन. सो हर वीक में वो हिट करता था. मेरा गोल ही था कि मुझे वो हिट करना है. तो उनको रिक्वेस्ट भेजा, उन सबका नोट डाउन करा कि दैट आई हैव सेंट दिस पर्सन्स रिक्वेस्ट. फिर उनसे फॉलो अप लिया अगर किसी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट विद अ नोट दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस फील्ड, इफ इट बी पॉसिबल यू कैन रेफर मी फॉर दिस रोल. अगर मुझे रोल दिखता था तो ठीक है, नहीं दिखता तो मैं उनसे पूछता था, बिकॉज वी सी कि भाई लिंक्डइन पे जॉब आए हैं और मतलब अब कंपनी का रिक्वायरमेंट है. बट अब समझ आता है जब काफी लोगों से बात कर चुके हैं, आई हैव टॉक्ड टू रिक्रूटर्स इन फैक्ट मेनी ऑफ देम, कि रिक्रूटर्स का और आजकल कंपनियों की पहली प्रायोरिटी रहती है कि इंटरनल हायरिंग हो जाए तो ज्यादा बढ़िया. ओके. कि मतलब अगर हमारे किसी इंटरनल नोन बंदे के थ्रू हायरिंग हो जाए तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हमें लिंक्डइन पे नहीं जाना पड़ेगा. अगर लिंक्डइन पे जॉब लिस्ट हो रही है, दैट मीन्स कि दे ऑलरेडी ट्राइंग इट आउट टू फाइंड दैट पर्सन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. उन्हें 1 महीना हो गया होगा ढूंढते हुए, तब जाके वो लिंक्डइन पे आएगा. या मेक सेंस. इसलिए बंदों को लगता है कि यार अभी तो इस जॉब में कंपनी नहीं है, मतलब इस कंपनी में जॉब नहीं है, तो मैं इसमें अप्लाई क्यों करूं, इनको रिक्वेस्ट क्यों भेजूं. बट नो ब्रो, उनको भेजो और सिंपल सा नोट लिखो, सिंपल दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ डेटा एनालिसिस फील्ड. इफ देयर इज एनी रेलेवेंट ओपनिंग फॉर माय पर्पस देन प्लीज लेट मी नो. आप 50 लोगों को भेजते हो, लेट्स सपोज हम नॉर्मल फनल बनाते हैं ना, आपने दिन में एक कंपनी में 50 को भेजा, 10 कंपनी थी तो आपने 500 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है. मैं समझता हूँ बुरे से बुरा कन्वर्जन रेट आपका 10% भी होता है. तो आपके पास सिर्फ 50 लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी सिर्फ 10% मतलब 5 लोग आपको रिप्लाई बैक कर रहे हैं. तो आपके पास अब 5, दैट कुड बी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, दैट कुड बी फ्रॉम सेम कंपनीज, बट आपके पास 5 का रिप्लाई बैक आता है. मेरे पास अभी काफी आते थे कि ब्रो अभी तो नहीं है, बट इफ देयर इज एनी ओपनिंग आई विल लेट यू नो. मतलब अब आपने बना लिया, एक पोजीशन बना ली कि अब कोई भी रेलेवेंट ओपनिंग आएगी उस कंपनी में, यू विल हैव एन अपडेट. या काफी बार होता था कि यस देयर इज एन ओपनिंग, वो डायरेक्टली मुझे अपने एचआर का नंबर भेज, वो प्रोफेशनल ईमेल भेजते थे और उनको रीच आउट करने के लिए बोलते थे कि यू कैन रीच आउट दिस पर्सन्स, कंसर्न पर्सन्स एंड आस्क अबाउट द जॉब रोल. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. भाई मैंने बहुत अप्लाई जॉब करी है, बट मुझे अप्लाई करने से जॉब नहीं मिली है, मुझे रेफर से जॉब मिली है. मैंने पकड़ के बंदों को, मैंने कहा ना 500 जन है भाई, ये मैटर करता है. सबको रिक्वेस्ट भेजो. ये काम बहुत टीडियस लगता है बंदों को, बिकॉज इट्स अ लेमैन वर्क, बट द ट्रूथ इज यू हैव टू डू इट. वो ये ना हार्ड वे है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे एट द एंड जब आपके पास इतना बंडल ऑफ कनेक्शंस होगा. मतलब आई जॉइंड उबर, और अभी भी मेरे पास कुछ लास्ट वीक तक कॉल्स आ रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू अप्लाइड इट देयर. मतलब वो जो मैंने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अप्लाई करा था या फिर बंदों को रीच आउट करा था, वो आज तक मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है. इट्स माय लक कि मुझे जॉब मिल गई, ठीक है, तो अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी.
बट अगेन आप सोचो कि अगर आप 1 महीने अप्लाई कर रहे हो ना, तो बंदे डाउनफॉल कब कर जाते हैं, फिर डिमोटिवेट कब हो जाते हैं, उनके पास कॉल बैक नहीं आते विदिन 1 वीक। विदिन 1 Hmm. वीक कुछ नहीं होता। आप 1 महीने एफर्ट करोगे, उस 1 महीने का फल आपको अगले महीने मिलेगा। Right. Right. देयर इज़ अ प्रोसेस, कंपनीज़ में प्रोसेस होता है। वो ऐसे नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो उन्होंने जॉब क्रिएट कर दिया, फिर उन्होंने उनके पास भी हज़ार सी रिक्वेस्ट आ रही होती है। सो यू हैव टू प्रोसेस ईच ऑफ देम। सो इसलिए यही है कि थोड़ा डटे रहो। एंड आई वुड से कि ये अप्रोच अभिषेक आई वुड से कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा। अगर इस प्रोसेस चल रहा है ना कि 8 घंटे डेडिकेटेडली बैठ के अपने रिज़्यूमे पे काम कर रहा है, और रिज़्यूमे की बात है, रिज़्यूमे भी आई वुड शेयर माय रिज़्यूमे विद यू आल्सो। That you have seen, it's pretty decent. It's not Yeah. show off, कुछ ज़्यादा Hmm. चमक धमक नहीं, it's a very decent, and that is something you have to take care about, because अपना रिज्यूमे सिंपल एज इट इज पॉसिबल बनाओ और उसमें की पॉइंटर्स ऐड करो बस। कोई फैंसी प्रोजेक्ट्स का इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत डालो। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपके लिए आसान हो जाता है। आपको वही जेडी उठाई, रेलेवेंट काम देखा और उसको अपने जेडीज में ऐड कर लिया और भेज दिया। दैट इज ऑल। फोटोज लगा देते हैं काफी। वो चलो रिज्यूमे वाला तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि बहुत उसके पे अलग अलग सेशन बनाने वाले हैं उनकी, कि रिज्यूमे पे एग्जैक्टली कैसे काम करना है। बट हाँ, रिज्यूमे पे थोड़ा काम करो आप, अपने सिंपल बनाओ, उसे भेजना स्टार्ट करो। मार्केट में रिज्यूमे उतरता है, सो देर इज ऑल्सो टेक अबाउट 1 मंथ टू गेट आई अपॉन, कि Okay. रिज्यूमे दिखेगा। तो वो सब है, प्रोसेस है। Yeah, so it's a very good point actually. आपकी ये जो 1 महीने की मेहनत है ना, ये केवल 1 महीने नहीं प्ले करेगी, अगले 4-5 महीने तक आपको कनेक्शंस ला के एग्जैक्टली, देगी और अपॉर्चुनिटीज ला के देती रहेगी, राइट? तो एग्जैक्टली। अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब 1 महीने आपका केवल यही काम था, जॉब ढूंढना। वो उसको आपने जॉब तरीके। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। आई मीन, जब हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि जब मैंने 1 डेढ़ महीने अप्लाई करा, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई, एंड आई वाज लाइक कि फक्ड अप यार, अब तो फील्ड चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं, कोडिंग सीख लेते हैं। या या बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, इट वाज लाइक कि मैं पूरा वीक पैक्ड रहता था। मेरे एक दिन में 3-3 इंटरव्यूज हो रहे थे। सुबह मीशो का हो रहा है, शाम को बिटगो का हो रहा है, फिर उबर का इंटरव्यू हो रहा है, फिर डीकैथलॉन का भी इंटरव्यू शूट। मतलब ऐसा था कि लाइनड अप रहते थे इंटरव्यूज। वही इट्स अ पाथ। या well वही है। now we can take all these things in a more detailed manner, maybe in other webinars, right? Just a second. Before that, I just want you to talk about how's the life at Uber. Yeah, so I would say Uber is very pretty good place यार। मतलब बिफोर दैट आई स्टार्टेड ना, आई वुड से स्टार्टअप, बहुत कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बड़े थे। ड्रिफल वाज अ वेरी न्यू स्टार्टअप, बट दे आर डूइंग वेरी गुड। बट या, अब यहाँ पे आके समझ आता है कि प्रोसेसेस क्या है। मतलब मुझे भी काफ़ी नॉलेज नहीं थी यार। मतलब प्रोसेस हम बनाते थे, बट हमें नहीं पता होता था उसे वैलिडेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के अपने प्रोसेसेस है, हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर एक टीम है। थोड़ा-सा यहाँ पे बस वही है कि मुझे जो लगता है कि हाँ, देयर इज़ नो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द टीम्स, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम है यार। मतलब अब 10-15 हज़ार की लोगों की टीम में तुम सबसे बात नहीं कर सकते हो। बट अगेन इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क अपॉन। Right, right. जिस स्केल पे वो काम कर रहे हैं, एंड इफ यू लव द डेटा, यू लव द जॉब, आई वुड से कि मतलब इतने बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। टूल्स इनके काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में है, लिमिटेड टूल्स है कि हाँ, इस पे काम कर सकते हो। सो दैट्स अ गुड। मतलब यार, अब वही है, बोलने को तो बहुत कुछ है। इट्स ओवरवेलमिंग फॉर मी इटसेल्फ, Yeah. बिकॉज़ कि Yeah, ये well, भी we कर can we can plan different webinars on weekends, right? Where we can pick all these things और उसी को लेकर के हम डिटेल में और बात कर सकते हैं. या But yeah, like I guess almost 1 घंटा होने को है. But before we end up this program today, I just want you to pick some problem queries जो लोगों ने पूछा है, हम उनको उनके answers कर देते हैं, right? हाँ, या So श्योर, maybe श्योर। सो देयर आर फ्यू bundle of queries, I would say 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, एंड दैट्स थैंक्स यू फॉर दैट yeah. क्वेश्चंस, बिकॉज़ मैं तो जब पूछता था तो मैं तो 300-400 क्वेश्चन ही पूछता था। तो दैट इज़ गुड कि क्वेश्चन पूछना भी बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो जाता है डाउट। या हमारे पास बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया एक्चुअली लोगों का, जो बहुत सारी चीजें जानना चाहते थे। बट मे वही, बी वही यू तो। कैन शॉर्टलिस्ट फ्यू थिंग्स, और जो बहुत बेसिक और जो हर हाँ, कोई मतलब पूछ रहा है, यू कैन पिक दोज थिंग्स राइट टुडे, एंड अदर थिंग्स वी कैन प्लान लेटर।
I guess Susanka internet is gone. Maybe let me check. Guys, just give me a minute. I'm checking with him. He's joining. I guys, power cut की वजह से he dropped. He just joining. Just wait for a minute. Hello. Yeah. Sorry. I guess you dropped Sorry, there is because of. the network issue, but क्वेश्चंस जो थे, जैसे स्टार्ट विद द वेरी कॉमन क्वेश्चंस कि पीपल आस्क मी कि क्या मैं ये टूल कर लूँ तो मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, कि डेटा एनालिस्ट के लिए पावर बीआई करना अच्छा रहेगा, टैबल्यू अच्छा करना रहेगा। देखो, बात ग्राउंड बेस पे बात करते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा बिजनेस और प्रोडक्ट एनालिस्ट, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आप, पहले तो आप वो देखो कि वहाँ क्या यूज होता है। अगर वहाँ पे पावर बीआई यूज होता है तो स्टार्ट वर्किंग फॉर पावर बीआई। ऐसा नहीं है कि आपने पावर बीआई कर लिया तो लेट्स सपोज कि अब जैसे उबर है, उबर में तो पावर बीआई यूज नहीं होता, वी यूज टैबल्यू एंड लुकअप बाय द वे। सो अब आप क्या करोगे, आप उबर में अप्लाई नहीं करोगे, यू स्टिल डू इट। सो बेसिक ये है कि इन सारे टूल्स का ना क्रस सेम ही है, कोई भी आप एक कर लोगे तो आपको दूसरा सिर्फ ऊपर ऊपर से टचअप करना पड़ेगा कि भाई डेटा लोड कैसे होता है, डेटा फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मैट्रिक्स केपीआई क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं, कैलकुलेशंस क्या होते हैं। सो वो सारी चीजें सेम है सर टूल्स में, यू जस्ट हैव टू डू वन, और फिर बाकी सबके ऊपर ऊपर से एक दो प्रोजेक्ट कर लो, दैट्स इट। और उससे ऊपर से कुछ नहीं है। और जो यूट्यूब पे मैंने काफी वीडियोस देखी है यार, पावर बीआई कोर्स कर लो, 15 लाख की जॉब मिल जाएगी, मुझे दिलवा दो मैं भी ले लूंगा, सिर्फ पावर बीआई करके अगर जॉब मिल रही है तो आई वुड ऑल्सो डू इट मैन। मतलब कौन बैठेगा 10 चीज सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले तो वो सब, उससे अपने आप को दूर रखो, वर्क Those are ऑन clickbait वन। actually on YouTube. Yeah. वो क्लिक बेट है कि भाई पावर बीआई का सर्टिफिकेशन ले लो, 15 लाख की जॉब ले लो। अब उनसे कि यार मैंने तो ऊबर लेवल पे भी नहीं देखा ऐसा कोई बंदा हो जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट से यहाँ बैठा हो। दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव स्किल सेट्स, सो स्किल सेट्स मैटर। कोई एक सीखो, फिर बाकी सब पे टचअप कर लो, ये हो जाता है। तो Correct. किसी एक टूल के भरोसे मत बैठो। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स के लिए तो ये बोलूंगा। बाकी सम पीपल आस्किंग मी दैट वी हैव अ गैप ईयर ड्यू टू द गवर्नमेंट स्टडीज, सो आई वुड से कि यार ब्रो, गैप ईयर है, दैट इज गुड बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफरेंट थिंग्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे अपने लाइफ में, अगर वो फुलफिल नहीं भी हो पाए, दैट मीन्स कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, चलो ठीक है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आई वुड से कि इसलिए आएगा बिकॉज अब आप उन लोगों से काफी पीछे हो, बिकॉज इंटरव्यूज में बैठ के ना गैप जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बट अगेन इफ यू आर स्टडिंग फॉर अ पास्ट 1 ईयर, पास्ट 2 ईयर, सो आई वुड कंसिडर यू अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। सो आपके लिए कोई भी चीज करना 6 महीने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब डेटा एनालिसिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न इन 6 मंथ्स, 3 मंथ्स इन फैक्ट, इफ यू आर मच डेडिकेटेड इनफ। तो उस पे अप्लाई करो। और बाकी आई वुड से कि वैसे कुछ मैटर करता नहीं है, इफ यू आर एबल टू शो द रिक्रूटर दैट यू आर गुड फिट फॉर अ रोल, दैट डजंट मैटर कि आप 1 साल से घर बैठे हो या 2 साल से घर बैठे हो। वो ये है कि आपके अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यार आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपके कुछ दोस्त होंगे जो 2 साल से काम भी कर रहे होंगे। ट्राई टू रीच आउट दोस पीपल, बिकॉज आई हैव सीन पीपल की 5-5 साल यूपीएससी में लगे रहे थे, कुछ मेरे सीनियर्स ही थे, और अब जाके मेरे थ्रू जॉब ले रहे हैं, फिर आई वुड हेल्पिंग देम टू गेट अ जॉब। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू आर डूइंग दैट, लीप ईयर है या गैप ईयर जो भी है, तो ट्राई टू वर्क आउट इन दैट सेंस। और कुछ क्वेश्चंस थे कि हाँ, कि मैं कॉलेज से फ्रेश आउट हो रहा हूँ, मतलब इफ आई एम जस्ट गेटिंग पास आउट फ्रॉम अ कॉलेज, आई एम अ फ्रेशर, हाउ वुड आई प्रिपेयर इट। सो आई गेस वो तो अभिषेक इस पॉडकास्ट में हमने काफी कुछ बातें करी भी है उसके रिगार्डिंग, दैट इफ यू आर पासिंग आउट सो क्या क्या कर सकते हो। Yeah, that's pretty much, yeah, matlab, make your, if I have to take a keynotes out of this entire conversation that we had, I would say make your social presence very good on LinkedIn, on Naukri.com, update your profile
अपडेट योर प्रोजेक्ट्स, अपडेट योर सर्टिफिकेशंस इफ यू आर डूइंग एनीथिंग। मतलब दुनिया को दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोकस करो स्किल सेट्स गेन करने पे रेदर देन सर्टिफिकेशंस, बिकॉज इवन आई डिड मेनी सर्टिफिकेशंस, बस उसमें से कुछ मेरे काम आया नहीं। एट द एंड, जब आप बिल्कुल एंड टू एंड डेटा पे काम करते हो और एनालिसिस करते हो, तो ये आपको पता चलता है। बिकॉज एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन फॉर दिस मेरी स्किल पौधा, कि यार बिल्कुल एंड टू एंड डेटा उठाया है, जो मेरे वेबसाइट्स पे डेटा Yeah, था। maybe we can more, yeah, sorry. Yeah, maybe you can more talk about the program that you have designed for data analyst at Meri Skill with Podha. या सो So दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मतलब यार उसमें मैंने जो 2 साल में सीखा कि भाई मार्केटिंग कैसे करी जाती है, कैंपेन कैसे मैनेज करे जाते हैं, या फिर बिजनेस को एक्चुअली में इम्पैक्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो आई हैव अ सफिशिएंट डेटा बिकॉज वी आर रनिंग दिस बिजनेस फॉर पास्ट 2 years, सो इट्स काइंड ऑफ अ ठीक ठाक बिजनेस है। अब तो मेरा भाई संभालता है, मैं नहीं संभालता उसको। सो उसके अराउंड मैंने काफी कुछ, कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करना है, एक्विजिशन सोर्स, ट्रांजैक्शंस पे कैसे आप काम कर सकते हो। सो जो मैंने 2 साल में करा है, अब उससे उसका ज्ञान आपको सिर्फ इस एक कोर्स में मैं दे सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, it's आई वुड not से। actually, वाई? it's an experience program actually, right? Where you can वही वही experience the data analyst job profile and you can work on all these things जो सुशांत ने पूरे पिछले 1 साल में करा है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फेस करा है। तो आप उस प्रोग्राम, उस एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करने जा रहे हो किसी नई कंपनी में या फिर किसी भी ई एग्जैक्टली, कॉमर्स कंपनी में, राइट? या एग्जैक्टली। तो सो वही है, I would say that is all from my end. कुछ questions वेल अगर आपके हैं, so you can comment on the video if या I'll get a chance. I'll लाइक definitely वी report कैन, it back. yeah, we can, maybe we can take few other queries अगर कुछ हो तो you can guys can put it in the comment box here and maybe we can pick all those queries. Guys, I guess he got a call from his office, maybe. So he might need to drop. He cannot join again. So, yeah, thank you so much, guys, for joining this session with Susant from Uber. And we are going to talk about more things in more detailed manner in the upcoming programs that we are planning in upcoming weeks. Okay. And also, we have launched our data analyst program at on Miri Skill platform, so you can have a look to the data analyst program, and there is a launch offer which is going on right now. So you can also, maybe you can also enroll to the program, and you will be guided by Susant in a 1 month program. So he's going to join every weekend, and he's going to talk about how he got his job and how you can prepare, what are the technologies that you should learn. All those things we are going to cover in the upcoming weeks, right? So before that, before you guys drop, you can subscribe to the YouTube channel so that every time we come up with something new, you can be notified by YouTube, right? And yeah, thank you so much for joining, and thank you so much for giving time for this podcast with Susant, who is from Uber. And if you guys have any queries, right, you can join our Telegram group as well as WhatsApp group, and you can also reach out to us using email ID, which is contact@maryscale.com, and you can drop your queries. Maybe in the next webinar we can cover those things as well. So yeah, thank you so much, guys, for your time, and we'll meet soon. Thank you.